we have taken one example of intermediate and final goods and services. From the same textbook, I am just quoting it that a biscuit is a final good, but in order to obtain the biscuit, we need wheat flour. We need wheat, which is grown by the farmer. We need the flour, which is being ground in the flour mill. Then the same flour is purchased by any company and which now uses some emulsifier or some chemical preservatives, oil, butter, sugar, etc. And then they finally prepare the biscuit. Now, the biscuit becomes the final product, but the flour, the sugar, the butter, or the emulsifier and the preservatives, they become the intermediate goods, without which we cannot obtain biscuit as a final product. Now, the cost of biscuit includes because it is the final product, so it already includes the cost of the intermediate goods like sugar, oil, butter, and emulsifiers. So this is one example from which we can understand when we are going to purchase a car, we are going to actually get the final good as a car, but it has hundreds and thousands of intermediate products like a seat cover is there, a steering wheel is there, headlight is there, glass there, mirror there. Okay, likewise, paint is there, then the seats are there, the tire is there, the alloy wheel case is there. All right, so many things are there. Lock is there, door handle is there. Then engine is there, connection is there, fuel tank is there, gearbox is there. So all of this are together fitted to obtain a final good, which is a car, and therefore a car comes at much higher price because it has a number of intermediate products, and in the value of all the intermediate products are cumulative, they are added. All right, and then only the final price of the car is actually decided. So these are the examples to understand about intermediate good and final good. All right, can you give some idea about intermediate services? Because it is the upcoming sector nowadays. So we are having a lot of services. I've given example about banking, insurance, about the transport communication, the services of doctor, engineer, or teacher, or security guard, or Army, Navy, Air Force. They are all considered as services. Can you give me any idea about any intermediate service? Suppose you go to the bank, you take the token, you submit the passbook, you take the withdrawal slip, write your name, amount, you sign it, you submit it. They open the computer, then they operate the computer, then they give you the printout of the passbook, and finally you come out from the bank satisfied that your money is either tendered or it is either deposited or withdrawn. So whatever service you desire from the bank, you get it. So we can understand that intermediate services are also available, and it goes through number of steps. All right. So one example is while entering the bank, our desire is to either submit the money or to withdraw the money or to transfer the money. And in between, we have to take the services of 2 or 3 bank staffs. And finally, we get our job done. All right. Somewhere there is a security guard in the bank. Then there are the persons who are working in the cashier. There are persons who are offering loan. There are persons who are doing the printout, who are counting the notes, and we are keeping it secured. So in this way, we can understand how goods and services become an intermediate good, or the same goods and services can be a final good. Final good means that the consumer finally uses it for its own benefit. जो good या सर्विसेज है वो जो है जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके देश की सुरक्षा के काम आ रहे हैं. अगर केवल आर्मी होता और नेवी और एयरफोर्स नहीं होता तो हमारे देश की सुरक्षा पूरी तरह नहीं हो सकती थी. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, पैरामिलिट्री, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके जो है हमारे कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम को जो है
ये किए हैं। तो ये पूरा सर्विस सेक्टर है जहां इंटरमीडिएट और फाइनल जो है हम समझ सकते हैं। चलो, तो ये हो गया कुछ हम लोगों का बेसिक टर्म्स। अब जो है थोड़ा सा ये इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बाद होता है हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस वर्ड का मतलब है टोटल, समग्र बोलते हैं, डोमेस्टिक घरेलू। लास्ट वर्ड इज प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल दिए थे ऐसे ही क्लास में कि बहुत सारे नोट्स छाप देते हैं, सबको अमीर बना देते हैं, तुम लोग जो है रिफ्यूज किए, तुम लोग डिनाई किए, नहीं सर ये इकोनॉमी फिर तो बर्बाद हो जाएगा। तुम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा ही जर्मनी किया था, और उनके पास पैसे थे लेकिन काम करने वाले कोई नहीं थे, तो उस कंट्री में प्रोडक्शन रुक गया था और जो है पैसे की वैल्यू घट गई थी। तो हमारे कंट्री में भी हमको ये समझना है कि देश में जो है प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब और एक्टिविटी को ही जो है हमको कंटिन्यू करना है, ना कि नोट छापना है। अगर काम होगा तो उसकी ही वैल्यू, मनी वैल्यू जो है हम उसको अपना कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो चावल है, गेहूं है, दाल है, सब्जी है, और पनीर है, और मीट, मछली, अंडा, और मिनरल है, फॉरेस्ट वेल्थ है, इवन पीपल है। हमारे कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो नेशनल रिसोर्स है, वो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ाए थे। तो हमारे कंट्री के जो पीपल है उनकी सारी जो ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल जो उनके पास जो नॉलेज है, ये सब कुछ रिसोर्स वैल्यू को जो है हम लोग जो है मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मान लो कि कोई इंडियन है, कोई कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, तो उनके पास जो सैलरी आ रहे हैं, ये सैलरी को लेके वो फिर अपना वेल्थ क्रिएट कर रहा है, और वो हो सकता है आगे चल के एक नया ब्रांच खोल ले, एक नया कंपनी खोल ले, इंडस्ट्री खोल ले, वो फिर नौकरी देने लगे और उसकी कंपनी चलने लगे। बस यही तो हम चाहते हैं कि इंसान जो है अपने नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करे, और इससे दूसरों को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक्सपेंशन होता है, स्कोप बढ़ता है, और ये सारा चीज जो है हम लोग जो है मनी वैल्यू से जो है जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और हमारे कंट्री का जीडीपी में हम लोग जो है पीपल का कंट्रीब्यूशन को भी जो है ऐड करने का अगर कोशिश करते हैं तो कर लेते हैं। और अब तो बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर जो है इसमें इंसान का खुद का इंटेलेक्चुअल जो है वैल्यू है और वेल्थ है, उसको हम जो है वहाँ जोड़ रहे हैं मनी वैल्यू के तौर पर। अब कैसे, हम इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टाफ को रखता है एजेंट बना के, लेकिन कोई इंश्योरेंस कंपनी का जो चेयरमैन है वो जरूर डाटा साइंटिस्ट को भी रखता है, डाटा एनालिस्ट को रखता है, जो उसके इंश्योरेंस टेबल क्रिएट करता है कि 1,000 रुपया प्रीमियम भरने से वो 10 साल के बाद वो कितना परसेंट रिटर्न देगा, और दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उनका क्या रिस्क है, उनका क्या प्रॉफिट है, ये सारा चीज वो एसेस कर लेते हैं। तो वो जो LIC भी अगर मान लो एक कंपनी है, उनके पास जितने उनके पास पॉलिसी है, सारा पॉलिसी का टेबल को वो लोग क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उनको जरूर जो है वो टेस्ट करके देखते हैं कि ये पॉलिसी जो है सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अगर उनको कोई गलती दिखता है तो वो जल्दी से जल्दी गलती सुधार लेते हैं, अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो चुपचाप रहते हैं। कब तक चुप रहेंगे? जब तक स्टेक होल्डर ना अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए, ना वो प्रोटेस्ट करे, ना वो गवर्नमेंट को इंडिकेट कर दे, और गवर्नमेंट भी जो है अगर होश में नहीं आती है तो ये सोचते हैं वाह चलो मेरा कंपनी तो बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। ऐसा ही शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट दिमाग का खेल है। LIC में जितने इंश्योरेंस होते हैं, टेबल क्रिएट होता है, उनमें प्रीमियम डिसाइड होता है। ऐसे मेडिक्लेम है। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक वक्त था इंडिया में लोग होटल में नहीं खाते थे, छुप छुप के जाते थे, वो बड़ी अफसोस करते थे आज मुझे बाहर खाना खाना पड़ रहा है। और अब जो है ये ऑटोमेटिकली ये जो है पासा पलट गया है। सोचो पुराने समय में जो होटल बेचारा अगर खोला भी होगा तो उसका होटल बिजनेस नहीं चला होगा, क्योंकि वैसे हमारे कंट्री में वैसे पॉपुलेशन ही नहीं था जो इसको सपोर्ट करता। लेकिन अब हमारे कंट्री में इतनी एजुकेशन और इतने स्टेटस, स्टैंडर्ड, एडवर्टाइजमेंट, उनको इतने तरह से हम मॉडिफाई कर दिए हैं, उनको मोटिवेट कर दिए हैं कि आप
जो है महीनों 2 महीनों तक अगर वो पार्टी नहीं मनाया, बाहर नहीं खाया, तो उनको लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ऐसे पॉपुलेशन है जो होटल जा रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट को जो है वो अपने लाइफ में इंक्लूड किए हैं, स्पेस दिए हैं और अपने डेवलपमेंट का वो पार्ट समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग का उपज है। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, हाउ ह्यूमन बींग्स कैन बिकम ए रिसोर्स। दुबई एक कंट्री है, वहां के सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, रूल, स्टैंडर्ड सब रिफ्लेक्ट करता है। दुबई में मैक्सिमम आदमी जाता है तो वो ये सोचता है कि अरे वाह क्या शहर है, क्या साफ सुथरा है, क्या डिसिप्लिन है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हंगामा, नॉइज, तोड़फोड़ कुछ नहीं है। तो ये कैसे संभव हुआ? तुम लोग में से कोई क्या रिप्लाई देना चाहोगे? तो तुम चैट को अपना यूज कर सकते हो, अगर तुम रिप्लाई देना चाहते हो तो हम चैट इनेबल कर सकते हैं और तुम चैट में लिख के भेजो। हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या दुबई जैसा दूसरा जगह भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, कर सकता है। तो ये पता करो, वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वहां पे गोल्ड के सबसे ज्यादा शोरूम है, सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स है और नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो देख लो वहां उनके कंट्री में। वैसे तो हम लोग छोटे थे तो जानते थे कि दुबई जो है वो यूएई में है और उधर आसपास में मिडिल ईस्ट कंट्रीज में केवल डेजर्ट है और लाइफ बहुत टफ है। उन लोगों ने स्टेडियम बनाया, बाहर से मिट्टी मंगवाया, पानी खरीद के लाके सिंचाई करके स्टेडियम में घास उगाए हैं और क्रिकेट खिलवा रहे हैं। और आज जो है वहां पे कितने आईपीएल के मैचेस और कितने इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, शारजा में, दुबई में, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है ये सेक्टर को उन लोगों ने हर हाल में डेवलप किया। क्योंकि वो जानते हैं और नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, तो उनकी मजबूरी थी वो स्टेडियम बनाए। और जो इंसान के शौक के जगह है और जो इंसान को सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइड की जगह है, वो चीज को वो लोग जो है अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रायोरिटी दिए हैं। तो दुबई में दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो सपना देखते हैं काश हम दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं। सोचो दुबई का जो रियल एस्टेट डेवलपर है, उनके अगर एक घर, बंगलो या फ्लैट या डुप्ले अगर होगा तो कितने लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हम लोग को एक सबक लेना चाहिए कि हम भी किसी भी जगह को ऐसा बना सकते हैं और किसी भी जगह को हम बिगाड़ भी सकते हैं। अगर इंसान का बिहेवियर गलत हो गया, पॉलिसी मेकिंग और सिक्योरिटी में कहीं लैप्स हो गया, तो सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। पाकिस्तान में एक बार क्रिकेट टीम में अटैक हुआ था। कोई बता सकते हो, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच चल रहा था और क्या वहां ऐसा कुछ टीम पर अटैक हुआ था, क्रिकेट टीम पर? और नतीजा क्या हुआ? इंग्लैंड जाने से, ऑस्ट्रेलिया वहां जाने से, वेस्ट इंडीज वहां जाने से, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये लोग कोई वहां गया नहीं। और पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट जो है वो बैठ गया, वो डाउन हो गया, वहां से प्रॉफिट नहीं आने आया, इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे। तो सिक्योरिटी लैब्स के चलते उनके कंट्री का क्रिकेट सेक्टर जो है वो पॉपुलर की जगह अनपॉपुलर हो गया बाकी वर्ल्ड में। फिर समय बीतता गया, वो आज भी अपील करते हैं कि हम लोग सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे, हमारे कंट्री जरूर आइए। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं हमको आज जो है ये सारा कुछ जो है इंसान का उपज है। और ये थर्ड सेक्टर है जो कि टर्शियरी सेक्टर का बारे में हम लोग बोल रहे हैं। और सब इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और बहुत थिन लाइन ऑफ सेपरेशन है। जो ईमानदारी से काम करेगा कोई भी सेक्टर का हो, वो आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट सब हेडिंग हम लोग देखेंगे वो है हिस्टोरिकल चेंजेस। वही है चैप्टर। हिस्टोरिकल चेंजेस सिंपल एक लाइन में हम एक समरी बता दे रहे हैं कि आज से 200 300 साल पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे प्राइम पोजीशन में था। 300 भी नहीं, थोड़ा और पहले ही जाते हैं, 500 साल पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात अगर हम करें
तो हमारे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोग डिपेंड करते थे, और यही जो है हमारा लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी माना जाता था। ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का वक्त था, और अर्ली मैन से लेके मॉडर्न सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर ही कंटिन्यू जो है डोमिनेंट एक्टिविटी माना गया। ट्रेड होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंडेबल जो सेक्टर था वो था एग्रीकल्चर। सो हमारे की बुक ने जो है लिखा है पास्ट 100 ईयर्स, मतलब हम अपनी आजादी से कुछ वक्त पहले का भी वक्त ले ले तो हम मानते हैं इंडिया में गांव ज्यादा थे, इंडिया किसानों का परिवार था, हमारे देश के 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। तो ये हो गया एक हमारा पर्सपेक्टिव की हिस्टोरिकली among the three sector, the agriculture sector or invariably the primary sector or primary activity was the most important activity of the people। ये तो एक बात हो गया। फिर क्या हुआ, हमारे कंट्री में धीरे धीरे रेलवे की पटरी बिछाई गई, इंडस्ट्री खोले गए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है गवर्नमेंट ने जोर दिया। आजादी के बाद हम सड़कें बनाने लगे, हमने बिल्डिंग बनाया, ऑफिस बनाया, इंडस्ट्री बनाया, और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नहीं तो लोग गांव छोड़ के आना नहीं चाहते थे, घर परिवार को छोड़ के बाहर नौकरी नहीं करना चाहते थे। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, लोगों को लुभाने के लिए और इनकरेज करने के लिए उनको सैलरी बढ़ा दिया, उनको छुट्टी देने का, मेडिकल का, और उनको जो है बहुत सारे उनको फैसिलिटी देने लगे। भले उनको लॉस होता था, लेकिन उनको लगता था कि काम को किसी तरह से जो है बढ़ाना है, उनको जो है रोकना नहीं है। तो इंडस्ट्री बहुत मेहनत किया, स्ट्रगल किया, लोगों को अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी और ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट हर मामले में सपोर्ट किया, और 20 से 30 साल में इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा पांव जमा लिया। तो एग्रीकल्चर से कुछ लोग छोड़ के पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जो है धीरे धीरे इंडस्ट्री की तरफ जो है उनका लगाव और उनका जो है चॉइस बदलने लगा। तो सेकंड सेक्टर जैसे जैसे एग्जिस्टेंस में इम्पोर्टेंस गेन किया, उनका जो है डेवलपमेंट हुआ, उनका स्प्रेड हुआ, और वो सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो ये हमको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के भरोसे हम सिर्फ नहीं रह रहे हैं, इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ खुलने लगे हैं, लोगों का गुजारा अब इंडस्ट्री के जरिए भी होगा। तो हमारे पास दो सेक्टर थे, और ऐसा ही वक्त आगे बीतता गया। तो धीरे 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 1990s के बाद 90 और 2000 और अभी 2023 है, तो हम करीब करीब लास्ट 40 ईयर्स में हमारे कंट्री में अगर देखेंगे तो टर्शियरी सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, ये सेक्टर धीरे 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 स्प्रेड आउट हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। और टर्शियरी सेक्टर जो है वो भी अब अपकमिंग सेक्टर माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाले कंपनी इंफोसिस हो सकते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर बोल रहे हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि इंडिया के भी बहुत सारे लोग जो है गूगल ज्वाइन कर रहे हैं, अमेजन ज्वाइन कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो जॉब ऑफर कर रहे हैं। और टर्शियरी सेक्टर में इंडिया का, चाहे वर्ल्ड वाइड देखा गया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वो सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहे हैं, और सबसे लोगों का जो है प्रेस्टीज और स्टैंडर्ड में जो थिंकिंग में जो चेंजेस आया है वो टर्शियरी सेक्टर के आने के बाद से हुआ है। नहीं तो हम थोड़े से सैवेज, थोड़ा प्रिमिटिव और थोड़ा सा जो है आउटडेटेड थॉट के साथ ही अब तक अपने आप को पुल ऑन कर रहे थे। लेकिन अब जब हमारे पास इतने सारे एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, ये सारा चीज जो है वो सोशल नेटवर्किंग, ये सब कुछ नए सेक्टर है, अपकमिंग सेक्टर है, यहाँ अब भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। और हमें अभी जो है ये सेक्टर में हमको ज्यादा अभी स्कोप नजर आ रहा है। तो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर में हमको ये पता करना है कि कैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में धीरे 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 इंपॉर्टेंस जो है ग्रो भी हुआ, फिर शिफ्ट भी हुआ और चेंजेस भी आया। तो एक बुक में देखो ऐसा ही कुछ ये है, जीडीपी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये वाला एक
डाटा है, ये हम बनाएंगे, ठीक है। और एक और है ऐसे ही डाटा, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी इन परसेंटेज है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो चलो, ये हिस्टोरिकल चेंजेस भी समझने के लिए हमारे लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चीज को हम क्लास में भी फिर हम जो है एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक तो हमको हिस्टोरिकल चेंजेस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पुराने जमाने में एग्रीकल्चर, फिर कुछ वक्त आया इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और आज का दौर जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और यानी कि सर्विस सेक्टर का बोलबाला है। और इनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास ऐसे ही कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स है और ग्राफ बना हुआ है। 1973, 74 और 2013, 14 में कंपेयर किया गया है। एक ब्लू कलर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, और 73, 74 में पता चल रहा है कि रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों, लगभग तीनों ही छोटे थे। यानी हमारा इकोनॉमी जो है वो तीनों सेक्टर के मामले में बहुत छोटा इकोनॉमी था इंडिया का। कितना, लगभग जो है 500,000 करोड़ का इकोनॉमी था, ठीक है, नॉट इवन 1 मिलियन करोड़ का, 1 मिलियन करोड़ का भी इकोनॉमी नहीं था। तो ये समझ लो कि इतनी छोटी इकोनॉमी जो है 1973-74 का था। और मात्र जो है 40 साल में, लगभग 2013, 14 में, इन 40 years we have actually expanded our economy to from, सपोज ये जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है वो करीब करीब उससे जो है 10 फोल्ड हमारे कंट्री में एक्सपेंशन हुआ है। तो 500,000 करोड़ वाला एक ग्राफ दिख रहा होगा तुम लोगों को पेज नंबर 24 में, और वो लगभग 5,500, और उसके बाद भी उतना, मतलब जो है करीब करीब 5 बिलियन में हम पहुंच गए अपने इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों को पता चल रहा है कि कितना टाइम्स हमारे सेक्टर का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ एक चीज और दिख रहा है, 2013-14 में देखो, ब्लू, रेड और ग्रीन का प्रोपोर्शन चेंज हो गया है। तो ब्लू और रेड जो है वो दोनों मिला के जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे ज्यादा अकेले ग्रीन सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई बता सकते हो ग्रीन कलर कौन सा सेक्टर है? हम तुमको चैट करने के लिए इनेबल किए हैं, और चाहो तो अनम्यूट भी कर सकते हैं। एक रिप्लाई आ गया है आयुषी का कि जो है सर, रेड और ब्लू दोनों मिला के जितना कंट्रीब्यूशन हुआ इकोनॉमी में उससे ज्यादा तो है हमारे ग्रीन कलर। वेरी गुड, वो है टर्शियरी सेक्टर का। चलो, तो ये हो गया है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है उनका इम्पोर्टेंस हमारे कंट्री में ग्रो कर गया। और ये चीज जो है हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे? एक तो हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बनाए हैं। फिर इनको परसेंट में हम देख रहे हैं, एक जगह मनी वैल्यू में है, जैसे 500,000 करोड़ से 5,500,000 करोड़ में हम चले गए, ठीक है। तो ये एक हमको मनी वैल्यू में कंपेयर किए हैं। दूसरा जो है हमारा पेज नंबर 25 में जो ग्राफ है वो भी हमको परसेंट में बता रहा है। 73, 74 में ब्लू, रेड और ग्रीन का कंट्रीब्यूशन जो है वो दिख रहा है लगभग। ये थोड़ा एरनियस लग रहा है हमको, हमको थोड़ा यार गड़बड़ी लग रहा है, क्योंकि 1973, 74 में इतने सर्विस सेक्टर नहीं थे हमारे पास। प्राइमरी थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के 60 होता और वो 40 होता, लेकिन वो खैर डायग्राम से नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हम लोग जो है फिर भी ये मान लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का परसेंटेज जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूशन, वहां पे हमको जो है 2013-14 में हमको चेंजेस दिख रहा है, साफ चेंजेस दिख रहा है। लगभग 70% कंट्रीब्यूशन हमको दिख रहा है टर्शियरी सेक्टर का। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये ग्राफ को हम मेजर कर लेंगे कितने यूनिट है। 40% दिख रहा है ब्लू का, और यहाँ दिख रहा है 12%, 10 to 12% दिख रहा है। यानी ये
हाँ, ये एक्सपेंडेड इकोनॉमी है, ये भी ध्यान रखना है कि 2013-14 में परसेंट भले 12% कम है, लेकिन ये 12% का मनी वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो लगभग 100 टाइम्स ग्रो कर गया था। ठीक है, यहाँ से ये वाला इकोनॉमी का परसेंट निकाला गया है, और यहाँ पे जो इकोनॉमी कितना एक्सपैंड हो गया मनी वैल्यू के तौर पर, वो ध्यान रखना है। यहाँ परसेंटेज में भले वो कम दिखा रहा है, लेकिन इसकी मनी वैल्यू काफी ज्यादा है, और ये चीज हम लोग इकोनॉमिक्स में हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ हम मिसगाइडेड ना हो जाए कोई स्टैटिस्टिक्स से। और थर्ड है नौकरी के मामले में कितना कितना एम्प्लॉयमेंट देता है। अब ये देखो, हमको एक 9 में हम लोग पढ़े थे एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। कितने लोगों को याद है 9 में एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पढ़े थे, हाँ, आयुषी रेस्पॉन्ड कर रही है। तो कहीं ना कहीं आदित्य रंजन का भी तरफ से रेस्पॉन्स आया है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो यहाँ 72-73 चाहे 2011-12 जो भी एम्प्लॉयमेंट वाला ये है, ये इकोनॉमी को तो कंट्रीब्यूट इतना कर रहे हैं, लेकिन लोग कितना इन्वॉल्व करके रखे हो। देखो, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन 74% जो है एग्रीकल्चर को बिलोंग करता था, और कंट्रीब्यूशन सब मिला के खाली हो सकता है 10,000 करोड़ का करता था। तो हमारा पूरा आबादी का 75% कंट्रीब्यूट करता था टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ओ 40%। तो पॉपुलेशन दुगना था, लगभग 80% पॉपुलेशन, और उनसे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है मनी वैल्यू में, हमको 40% मिल रहा है। तो ये हमको कंपेयर करके पता चल जाता है कि हमारे कंट्री में कितना मैन पावर है और उनके आउटपुट कितना कम है। और यही चीज है एम्प्लॉयमेंट में भी हमको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जितने लोग 74% डिपेंडेंट होते थे, ये लोग एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के अब टर्शियरी और सेकेंडरी में भी ज्वाइन कर लिया 2011-12 वाले स्टैटिस्टिक्स में। ये बुक में देख सकते हो, ये 11-12 का फिगर है, और ये 73-74 वाले फिगर है। इसको हम स्कूल में भी जो है ऑफलाइन में फिर से बोर्ड में बना के एक्सप्लेन कर देंगे, और क्लास में थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट भी रहेगा तो वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 3 हेडिंग है यहाँ बुक में, तुम लोग को दिख जाएगा। पेज नंबर 23 में है हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, वो एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट है 24 में राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, वो ग्राफ से पता चल जा रहा है कैसे जल्दी 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 वो जो है सेक्टर ग्रो कर गया है। और लास्ट वाला है कहाँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी जो है सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इसलिए हम लोगों को वो बातें ध्यान रखनी है। तो ये पार्ट हमको लगता है एक्सप्लेन्ड हो गया है। अब हमको पढ़ना है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जरूरत से ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं। तो लोगों को, अगर मान लो कि क्रिकेट हम खेलते हैं, और हम सारे फील्डर को मान लो जो है विकेट कीपर के बगल बगल में रख देते हैं, तो कैच एक ही आदमी ना लेगा, और कैच ड्रॉप होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर क्रिकेट में हम मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्लिप रखते हैं, तो वहाँ बॉलर का स्ट्रेंथ, बॉलर का स्विंग नहीं हो रहा, तब भी हम इतने फील्डर को रख रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपने फील्ड पोजीशन को सही यूज नहीं किए हैं। वैसे ही हमारे कंट्री में जितने लोगों को नौकरी देना है, उनसे कितना काम लेना है, ये असेसमेंट होना चाहिए। और अगर ये हो जाता है कि लोगों को कितना काम दिए हैं और उतना उनसे हमको बेनिफिट मिल रहा है, ये पता चले, तो हम अपने प्लानिंग स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल मान सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, और वो मामला जो है धीरे धीरे लॉस हो रहा है, और धीरे धीरे कंपनी बंद होने के कगार में है, तो वो समझ लो कि,
एक के चलते, दो के चलते वो काम नहीं कर रहे हैं तो पूरा कंपनी बंद होने की स्थिति में आ जाता है, आफत आ जाता है। ये चीज जो है वो हमको अंडर एम्प्लॉयड एक तरह से एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। और यही अंडर एम्प्लॉयमेंट को जो है हम बोल रहे हैं जो है हिडन एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और एक और कंसेप्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला, कितने पॉपुलेशन मौजूद है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, और हम अगर जॉब नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कंट्री में जो ये गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, स्कूल खोलने हैं, हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमें हॉस्पिटल बनाना है, विदाउट प्रॉफिट भी ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और ये गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी भी कौन लेते हैं? इनडायरेक्टली कॉमन पीपुल ही टैक्स देके जो है सरकार बनाती है, और ये पैसे सरकार जो है वो स्कूल बनाए, चाहे बैंक बनाए, चाहे हॉस्पिटल बनाए। ठीक है। आईपीएल कराने से देश को थोड़ा बहुत टेम्पोररी प्रॉफिट होता है, लेकिन वो हमारे कंट्री का बेसिक रिसोर्स को नहीं क्रिएट कर रहा है। हमें स्कूल भी चाहिए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट चाहिए, क्योंकि ये हमको ज्यादा लॉन्ग टर्म में इंडिपेंडेंट बनाएगा। हम कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और हम कितना अच्छा डॉक्टर बन रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। हार्दिक पांड्या को डॉक्टर से ज्यादा पैसा है, लेकिन हार्दिक पांड्या जिस दिन क्रिकेट से बाहर हो जाएगा, समझ लो वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। और एक डॉक्टर अगला 30-40 ईयर्स तक जो है वो मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकता है। जितना ज्यादा वो पेशेंट देखेगा उतना ज्यादा वो अनुभवी होगा। तो चॉइसेस, हमें चॉइसेस जरूर जो है फेयर चॉइसेस रखना है, नेसेसरी चॉइसेस को हमें सपोर्ट करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है लगभग हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट 9th में पढ़े हैं, और हम लोग जो है यहाँ 10 में भी पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, और हमें अब आइडियाज सोचने हैं कितने एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकते हैं। तो आईपीएल अभी जो हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो अब हम थोड़ा तारीफ भी कर देते हैं कि आईपीएल के चलते बहुत सारे यंग टैलेंट को मौका मिल रहा है, और इंडियन टीम को स्ट्रांग टीम बना रहा है। इंडिया अभी मैच जीतता है, ट्रॉफी लाता है, और गेम पॉपुलर हुआ है। इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ यहाँ पे ये जो है एम्प्लॉयमेंट को भी जो है बढ़ाया है। तो आईपीएल में करीब करीब लाखों लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई कंपनी के स्टाफ उसमें लगे हुए हैं, स्टेडियम के सिक्योरिटी है, और उसके ग्राउंड स्टाफ है, और क्रिकेट के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, और एकेडमी है, और गवर्नमेंट भी है। ये बहुत सारे सेक्टर मिलके हमारे कंट्री में आईपीएल को सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का नौकरी बढ़ा है। ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो हम आजकल बैडमिंटन का भी लीग बना रहे हैं, कबड्डी सुपर लीग है, सॉकर लीग है, और वॉलीबॉल के लीग हो रहे हैं, बास्केटबॉल लीग हो रहा है, रेसलिंग कंपटीशन हो रहा है, योगा कंपटीशन हो रहा है, एथलेटिक्स होता है इंडिया में। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को हम जो है चुन लिए हैं ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और हो सकता है हमें उनका डिविडेंड मिलने भी लगा है। इंडिया मेडल विनर है अभी ओलंपिक में, और सबसे खास बात है कि इसमें मेडल अभी हमारे वुमेन पार्टिसिपेंट्स ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ थोड़ा बहुत सक्सेस के रास्ते में बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट जब ऑफलाइन क्लास में हम लोग जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। ये अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।